হাউ ইন্ডিয়া স্ন্যাক্স, এই প্রশ্ন করছে গোদরেজ টাইসন ফুড লিমিটেড, যারা নিজেদের রেডি টু কুক ফুডের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে এই স্ন্যাক্সের ধারাটাকে বদলে দিয়েছে। অর্থাৎ আপনি বাড়িতে ব্যস্ত সময়ে কাটিয়ে একটু রিল্যাক্সেশন করতে চাইছেন, সেই সময় হাতের কাছে চটজলদি খাবার আপনার মনের স্বাদ, পেটের স্বাদ সবই পূরণ করবে। তাই গোদরেজ ইয়ামিজ বরাবরই সেই চিন্তা করে তাদের ফুড প্রোডাক্টস প্রিজারভেটিভ ফ্রি বানিয়ে থাকে। বাড়িতে যখন আপনি এই খাবার খাচ্ছেন, আপনার স্বাস্থ্যের চিন্তা, আপনার পরিবারের সদস্যের স্বাস্থ্যের চিন্তা করছে গোদরেজ ইয়ামিজ। নতুন প্রোডাক্ট তারা লঞ্চ করেছে আজকে মুম্বাইয়ে। ইন্ডিয়ার নতুন স্টারকে তারা সামনে এনেছে, ইয়ামিজের এই নতুন স্টার, যা ইতিমধ্যেই বাজারে আসতে চলেছে। আজকে তার উদ্বোধন করা হলো গোদরেজ ইয়ামিজের তরফে। ইন্ডিয়ার নতুন স্টার। This is just a quick journey just to tell you our history into this category, the frozen foods category, and in the chicken business. As you know, it's a joint venture between Godrej Group, Godrej Agrovet, and Tyson Foods Limited. It's a Fortune 100 world second meat processing company. The business started around 1999, was when the business was set up as the poultry business. We were one of the first ones to get Godrej Real Good Chicken at those times when chicken wasn't branded. We got that, launched that in 2002. Yummies, the brand that we're talking about today, came in early 2005, which, as you would know, that for a frozen foods category, one of the first brands in the category. And then since then we've had various expansions and set up in terms of both on the non-veg side and veg side. A 3,500 crore industry as today. The great thing about this is it's one of those industries which is a good combination of B2C, which is to the consumers. It is a good combination of exports and B2B. So it has presence in all the places. The category is growing rapidly. It's anywhere between 8 to 10%, and this is happening even on the back of some very large expansion that happened in the category during the COVID period. You know, COVID period, hum log sab ghar mein the, all the restaurants etc. were closed. Was very good for this frozen foods industry. This was our only way to indulge, and I think the category grew very significantly. I think one thing which has happened in the post-COVID era is that people from their food and beverages, they're looking for choices that they know that are safe, they know that they're hygienic, and they're becoming very particular about that. And then last but not the least, what's aiding the growth also is this whole expansion of cold chain infrastructure, which is happening both in terms of the supply chain, the logistics, as well as at a retail level. Why do we believe that we are very well positioned to succeed in this? हमारी इसमें position बहुत अच्छी है. उसका reason है it's a brand from the house of Godrej. Food choices के मामले में trust is a very big thing, and Godrej name comes with a certain level of trust that the consumer have associated. That's the range, very diverse portfolio we offer. Again, in food and beverages, I've known this from my own experience, like Sujit mentioned in the Coca-Cola company. When it comes to food and beverages, people have very individual choices. So what matters a lot is how do you cater to those choices by having a diverse portfolio, both on the non-vegetarian side and on the vegetarian side. And one of the reasons behind our success in this category has been that we've been able to create a brand that's very well known. So amongst the target consumers, 91% awareness. We have 75% of the consumers keep us in their consideration set. And over the years, with the combination of what we do at the point of sale
and through digital media, through TV advertising, we've been able to become a brand of choice when it comes to the frozen snacks category. So there is a significant population who is predominantly vegetarian as well. We have in the frozen foods category a swing which is 65% consumers or the category contribution comes from vegetarian products, which will be French fries, tikki, aloo tikki and all that, and then about 35%, a third is non-vegetarian. সঙ্গে রয়েছেন মিস্টার अभय पार्नेकर, गोदरेज टाइसन फूड लिमिटेड सीईओ। आपका बहुत बहुत स्वागत है कोलकाता टीवी में। आई होप यू अंडरस्टैंड द बंगाली व्हाट आई स्पीक। I could understand 80% of it. As I said, it's a pleasure to be with you because I started my career 22 years back in Kolkata. So it's great to be with you here on this TV. So I started with the name of Godrej with trust. Trust and Godrej is one of those words in India which are related to Indians. Every Indians, they lock their house, and apart from that, Godrej Food Tyson उनका जो काम है, Godrej Yummies इस साल में तीसरा ये लॉन्च है आप लोगों का। तो रेडी टू कुक फूड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, एंड उसकी वजह से सिर्फ जो फूड लवर्स है उनके लिए नहीं, जो मम्मीज़ है उनके लिए भी एक भरोसे का जगह पे ले आया है। तो हाउ यू मेक दिस प्रोडक्ट सो रिलेटेबल टू दैट रीजन? देखिए, जैसे अभी हमने बात की थी, तो यमीज़ जो ब्रांड है, बिकॉज ऑफ बीइंग फ्रॉम द हाउस ऑफ गोदरेज, ब्रिंग्स दैट ट्रस्ट। हमने अभी एक रिपोर्ट भी, एक स्नैकिंग रिपोर्ट, एक रिसर्च करवाई थी, उसमें वी गॉट टू नो दैट सेफ्टी and taste are two of very key parameters for which any mother, father, anybody in the family, they use that criteria to choose the products. Our technology, which is an IQF technology for this specific launch that is in the veg range, one of our third launch in this year, it's made with the IQF technology, जिसे हम कहते हैं individual quick freeze technology. इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम प्रोडक्ट्स को इंडिविजुअल पीसेस को फ्रीज करते हैं, बहुत रैपिड फ्रीजिंग करते हैं, और उस टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्ट की जो टेस्ट, स्मेल या जो भी ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो बहुत अच्छे से उसमें रह पाते हैं, ताकि जब आप रेडी टू कुक, जब फाइनल स्टेप घर में ईदर द मदर और द फादर और एनीबडी हु इज कुकिंग एट होम लास्ट स्टेप करते हैं, तो प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वैसी ही रहती हैं जैसे कि उस समय जब फ्रीजिंग के टाइम पे रही थी। तो ये एक प्रोडक्ट जो एक्सपीरियंस है वो लोगों को ये कॉन्फिडेंस देता है दैट दिस टेक्नोलॉजी based without any added preservatives, this is something that is safe and good for my kids. तो आपने जो कहा, इन सब में से जर्नलिस्टिक इंस्टिंक्ट से मैं फिर से IQF पे मेरी ध्यान गया, एंड रिसर्च में मैंने एक बार पढ़ा है कि वुमेन जो है मेन से ज़्यादा इस बारे में जानकारी रखते हैं, पर ये IQF टेक्नोलॉजी क्या है, एंड आप इससे, क्योंकि रेडी टू कुक फूड एक टाइम पीरियड होता है, आप फ्रिज में ज़्यादा दिन उसे नहीं रख सकते, अगर ये प्रिजर्वेटिव फ्री है तो और भी चिंता का विषय हो सकता है। तो उस बारे में आप क्या डिटेल्स हैं? देखिए, IQF टेक्नोलॉजी बेसिकली, एज आई सेड, इज़ द इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमने जो रिपोर्ट की थी उसमें यही निकला था कि जो मदर्स हैं या वुमेन हैं घर की, उन्हें इस टेक्नोलॉजी के बारे में मेन से ज़्यादा पता था, विच डिडंट कम एज अ सरप्राइज टू मी, एटलीस्ट वुमेन आर मोर नॉलेजेबल। तो ये टेक्नोलॉजी जो है, अगर आप सिंपल भाषा में इसके सोचेंगे तो घरों में हम, जैसे विंटर्स आती है, मटर वगैरह आते हैं, घर में हम मटर को छील के उसको फ्रीज़र में रख देते हैं, ये एक तरह से वही टेक्नोलॉजी है। इसमें बस एक इंडिविजुअल क्विक फ्रीज में अंतर ये रहता है कि रादर देन फ्रीजिंग एज अ बैच और इन बल्क, हम लोग इंडिविजुअल
आइटम्स जो नगेट जैसे ये स्टार्स प्रोडक्ट है, इंडिविजुअल आइटम्स को 50 डिग्री प्लस जब वो निकल के आते हैं फ्रायर से, उसके बाद एक बड़े फ्रीज़र में उसे सीधे 40 मिनट के अंदर -35 डिग्री पे ले जाते हैं। तो उस तरह से उसकी प्रोडक्ट की जो वो उस तरह फ्रीजिंग करने से एक तो वो प्रोडक्ट आपस में साथ साथ पास में चिपकते नहीं हैं, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती है, और प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है वो रिटेन्ड रहती हैं, क्रिस्पी रहता है। और फिर वो प्रोडक्ट जब पैक हो जाता है तो -35 से वो -18 डिग्री पे अपनी पूरी शेल्फ लाइफ में रहता है। -18 डिग्री पे, जो कि पैक पे भी इंस्ट्रक्शन रहती है, अगर ये प्रोडक्ट रहेगा तो इसकी शेल्फ लाइफ 9 महीने की शेल्फ लाइफ रहती है। एंड लाइक यू वुड नो कि घरों में भी हम जो भी चीज़ फ्रीज़र में अगर फूड आइटम भी रखते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी हो जाती है। तो ये इसी तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे इट इंश्योर्स दैट बिना किसी प्रिजर्वेटिव को हम ऐड नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी ये शेल्फ लाइफ हमें 9 महीने की सेफली मिलेगी। क्योंकि मैं ईस्ट से हूँ, कोलकाता से आई हूँ यहाँ पे, तो कहाँ कहाँ पे ये अभी मिल रहा है एंड किस किस सिटी में? क्योंकि जहाँ दिखा जाता है कि मॉल्स में या फिर किसी जगह में ही ऐसे रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ना कि जो शॉप्स है लोकल वहाँ पे बहुत कम मिलता है। और आजकल ऑनलाइन इतना ऐप हो गया है तो उससे भी घर पे आप ला सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? एंड माय पॉइंट इज़ कि मैंने वहाँ पे भी पूछा था कि कोई बंगाली फ्लेवर कुछ ऐड होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम इज़ ऑन बेस्ड ऑफ पोटैटो। नो, वेरी गुड क्वेश्चन। सो हमारी जो इसमें अवेलेबिलिटी है, लाइक यू राइटली सेड, अभी की डेट में अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो हमारे जो स्पेंसर्स के सारे आउटलेट्स हैं वहां हम अवेलेबल हैं। हम काफ़ी सारे आपके नेबरहुड में जो स्टोर्स हैं वहां भी अवेलेबल रहते हैं। जिन भी स्टोर्स में बेसिकली फ्रोज़न प्रोडक्ट को फ्रीज़र में रखने की सुविधा होती है, हम वहाँ अवेलेबल होते हैं। हमारी कोशिश ये भी रहती है कि इस प्रोडक्ट को जैसे जैसे हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएं, अच्छी सेल वाले आउटलेट्स को हम लोग भी एक फ्रीज़र प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी भी कैपेबिलिटी और उनकी भी कैपेसिटी सेल करने की बढ़ सके। इसके अलावा ई कॉमर्स के जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे स्विगी, इंस्टामार्ट हुआ या ऐसे ज़ेप्टो, इनके थ्रू हम ई कॉमर्स पे भी अवेलेबल हैं। आज की डेट में हमारी लगभग सेल इन तीनों ही चैनल से, या तो हमारे नेबरहुड स्टोर हों या मॉडर्न ट्रेड हो या ई कॉमर्स से, लगभग बराबर आती है। और जहाँ की आपने कहा कि कोलकाता के लिए प्रोडक्ट्स के लिए, कोलकाता में हमने ये देखा है हमारे पोर्टफोलियो में जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं उनका अडॉप्शन ज़्यादा है। तो वेदर आप कहें चिकन नगेट्स, वेदर आप कहें चीज़ नगेट्स, इस तरह के नॉनवेज जो प्रोडक्ट हैं उसका अडॉप्शन, कोलकाता हमारे लिए बहुत स्पेशल सिटी है उस मामले में। पर अब हम ये भी देख रहे हैं जैसे जैसे लोग मतलब काफ़ी तरह के लोग जिनकी केवल वेजिटेरियन पसंद है, पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट उनकी नेक्स्ट चॉइस होती है। बिकॉज करीब वो इसी रिपोर्ट में अगर हम देखें तो 2/3 लोग, 62% लोग करीब ये कहते हैं कि हमारी स्नैकिंग की चॉइस में वेज में अगर हम जाएं तो आलू या पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट्स मेन रहेंगे। तो इसलिए हम ये प्रोडक्ट उसमें लेके आए हैं स्पेसिफिकली कोलकाता के लिए। अब हमारा फोकस आगे चल के जो प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेकफास्ट सॉसेजेस हैं, ये इसका सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हमारा ईस्ट मार्केट से आता है। तो इन प्रोडक्ट्स पे हम अब काम कर रहे हैं कि इनको थोड़ा वहाँ पे हम ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें। यही मेरा नेक्स्ट सवाल था कि आने वाले समय में हम गोदरेज यमी से क्या मिलेगा, क्योंकि आपके कंपटीशन में आईटीसी भी है, मैकेन भी है, तो उस हिसाब से जो प्रिजर्वेशन फ्री का आप दावी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से नेक्स्ट क्या आने वाला था? फिश के ऊपर कुछ, क्योंकि कोलकाता वालों ने फिश के ऊपर काफ़ी आइटम आपने भी खाया होगा वहाँ पे, तो क्या आ सकता? देखिए, हमारा एक डेडिकेटेड R&D लैब है, स्टेट ऑफ द आर्ट R&D लैब। उसमें जो लोग काम करते हैं वो कंटिन्यूसली एक इनोवेशन पाइपलाइन पे काम करते हैं आने वाले नए प्रोडक्ट्स के लिए। तो मैं
इंडिविजुअल डिटेल्स बिकॉज ऑफ कंपटीशन रीज़न तो नहीं बता पाऊंगा हम किन प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, पर जैसा कि आपने देखा कि हम ये ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हर रीजन की जो लोकल ज़रूरतें या जो टेस्ट प्रोफाइल है या जिस तरह की उनकी नीड्स हैं उसको हम एड्रेस ज़रूर करें। तो अभी के लिए ये मैं कहता हूँ ऑलरेडी जो प्रोडक्ट हमारे इसमें नॉन वेजिटेरियन जैसे ब्रेकफास्ट सॉसेजेस, चिली सॉसेजेस, चिकन बेस्ड प्रोडक्ट, इन्हीं को हम ईस्ट मार्केट में और ज़्यादा अफोर्डेबल पैक्स में भी और इनका डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड करेंगे। एंड देन एज एंड व्हेन वी एक्सपैंड द कैटेगरी यू विल बी द फर्स्ट वन टू देन नो। And one question, why star? It's for the shape or for the name that is belong to India's new star. No, that's a very good way of putting it. Actually, I think you're asking कि पहले क्या आया, नाम आया या शेप आया, तो दोनों एक तरह से साथ में ही आए, बट इंटरेस्टिंगली जो what you're saying, the shape is this unique, ये इससे what it allows is प्रोडक्ट को क्रिस्पी रखने में मदद करता है। ये शेप हमने रिसर्च में देखा दैट जब फ्राइंग के बाद इस शेप से सबसे ज़्यादा क्रिस्पीनेस और सबसे ज़्यादा ओरिजिनल टेक्सचर प्रोडक्ट का रहता है। एंड देन इट वाज जस्ट अ एडेड बोनस कि बिकॉज ऑफ द स्टार शेप वी कुड नेम इट द स्टार्स एंड इट्स द नेक्स्ट अपकमिंग स्टार इन द फ्रोजन फूड्स कैटेगरी। খাওয়া দাওয়া ভীষণ ভালোবাসে এবং খাওয়ার জগতের পাশাপাশি অভিনয় জগতেও বেশ নাম করা একজন ব্যক্তির সঙ্গে আমি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছি। গোদরেজ ইয়ামিজের লঞ্চে তিনি এসেছেন, শুধু নয় প্যানেলিস্ট, খাওয়া নিয়ে এবং রেডি টু কুক ফুড নিয়ে যিনি কথা বলেছেন। টেলিভিশনের খুবই পরিচিত মুখ করণবীর ভোরা আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন। ওয়েলকাম টু কলকাতা টিভি বেঙ্গল। কেমন আছো? আমি তোমাকে ভালোবাসি। Me too. I do. It's a fact. Just because मुझे ये पता है इसलिए नहीं, because I do like her. She's sweet. But this is not sweet, this is salt and this is yummies. All the mummies, this is yummies. Oh, my question is linked to this. Why it yummies to relate it with only mummies? 52% Indians are on their report. They think their papa can do also this thing. मम्मी होने के पहले they're yummy. और मम्मी होने के बाद इवन मोर यमी। नो बिकॉज इतना काम करते हैं, इतना वो एक घर को बनाते हैं। ओके, एंड यमी इज जस्ट अ टर्म, बट फुल रिस्पेक्ट टू वुमेन फॉर हु दे आर एज इंडिविजुअल्स। एक्चुअली हम तो है ना, वो बोलते हैं ना कि हम मर्द जो हैं वी आर जस्ट अ स्पेक, जस्ट एक क्या बोलते हैं, एक छोटा सा धब्बा है इन द एंटायर cosmos of womanhood, really. So I think it's that's why, you know, we term it as yummies. You avoid my question why it's 52% Indian thinking के पापा भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ थॉट आया है? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके मम्मी के रेसिपी के बारे में भी सुना है एंड दैट इज मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए कि मम्मी जो सिखाती है वो सिर्फ औरतें ही क्यों, पापास भी रेडी टू कुक बना सकते हैं फॉर योर। इसीलिए गोदरेज ने ये आसान कर दिया, बहुत इजी कर दिया। बिकॉज यार देखो, एज मच एज आई एम अ हैंड्स ऑन डैड, मैं बहुत अपने बच्चों को, मतलब जितनी मम्मी ध्यान रखती है उतना मैं भी रखता हूँ, लेकिन यार ये बहुत कम होता है यार, हमें कुक करना नहीं आता है, हमें थोड़ा बहुत आता है। ये सब चीज़ें बहुत आसान कर दी है मेरे बच्चों के लिए, स्पेशली मेरे बच्चों के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी। अब मेरा दिमाग है ना फुल्ली, जो भी अगर, और कितने मोर देन 25 टाइप ऑफ स्नैक्स। सो फॉर मी इट इज डैम गुड बिकॉज माई किड्स डोंट नीड फूड, सिर्फ स्नैक्स खाते हैं। तो ये हेल्दी भी है, न्यूट्रिशन भी है इसमें,
no preservatives, and I'm a happy dad. Welcome to Kolkata TV. As India's foremost body ensuring food safety regulations. So my question is, what are the rules and regulation by FSSAI to ensure frozen foods have no preservative? For any food that we consume in India, we have safety related and standards, both are there. In safety, we do see that certain horizontal parameters are checked and taken care of. One of the important parameter is it's the growth of microorganism there and various residues. With respect to standards, there are certain standards for each of food that where the preservatives and the limit of additives are also given. Same with the frozen food also. Those are the parameters given in the act separately for each of the food, and this is also part of good manufacturing practice that the whatever adds we are using for preparation of the food has to be according to the good manufacturing practices. So this is how we regulate, and we always promote, as a body we always promote, regulation is one thing, but we always promote that the food is free or is away from as much as possible from the salt, sugar and fat. So salt is also one of the natural preservative. We would always promote that a food is low in salt. So one of the key ingredient is this in the working of FSSAI. অজয় চোপড়া আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে। সো ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল কলকাতা টিভি। হ্যাভ ইউ বিন देयर? यस, কেমন আছো কলকাতা? से आलू आज हीरो बन गया, तो आलू से बहुत कुछ फ्राइज भी हम बंगालीज भी पसंद करते हैं। सो ये जो प्रिजर्वेटिव फ्री बताते हैं, तो ये इसका इल इफेक्ट भी एक पड़ता है, रिसर्च में भी पाया गया है। तो उस चीज को ध्यान में रखते जब मम्मीज खाना बनाती है या पापाज बनाते हैं, जेंडर बायस नहीं करते, तो उस चीज को कैसे ध्यान रखा जाता है? सो अगेन आज बहुत सारी बातें हुई मिथ ब्रेकिंग पे, कि क्या मिथ है, क्या आलू अनहेल्दी है? नहीं। क्या डीप फ्राइंग अनहेल्दी है? नहीं। क्या पैकेज फूड विदाउट प्रिजर्वेटिव अनहेल्दी है? नहीं। बट होता क्या है कि जैसे मैंने आपको मटर के बारे में बताया दैट नॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट मटर, कि मैं फ्रेश मटर मार्केट से लेके आ रहा हूँ, वो फ्रेश है कि नहीं है। उससे ज्यादा फ्रेश पैकेट वाली है, वो इसलिए क्योंकि कम टाइम ट्रैवल किया है। सिमिलरली जब पैकेज फूड जो विदाउट प्रिजर्वेटिव्स है वो पहुंचता है मार्केट में, अब मार्केट में सब लोग सही दिल से काम नहीं करते। जैसे कि सुजीत ने बताया कि रात को लाइट बंद कर देंगे, फ्रीजर ऑफ कर देंगे। जहां पे कोल्ड चेन ब्रेक हुई, अगर -18 में, सो इट इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर साइकिल। एक कोई भी चीज जब बनती है तो वो 50 डिग्री से जब -20 के ऊपर चली जाती है, इट बिकम सेफ, इट इज एब्सोल्युटली सेफ, प्रोवाइडेड दैट -20 चेन डजंट ब्रेक। अगर वो -20, -10 हुआ, 0 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर उसके बाद वापस माइनस चला गया, देन बैक्टीरिया ऑलरेडी एंटर्ड, घर में घुसपैठी हो गई है। अब उसके बाद कोई नहीं बचा सकता। बट पीपल कांट सी दैट फ्रॉम द नेकेड आई, सो दे डोंट नो अबाउट इट। इस सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर कुछ खा ले तो बच्चों को कभी कभी नहीं देते कि ये आपके लिए सही नहीं होगा। तो रेडी टू कुक फूड जो खाने में भी हम यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ बच्चों के लिए मतलब हेल्दी एंड सेफ्टी, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कितना फायदेमंद? सी, आपने जो एक स्टेटमेंट बोला है, दैट इज ऑल्सो नीड्स टू बी लुक्ड एट इन अ लार्जर पर्सपेक्टिव। टुडे योर एंड माई एज ग्रुप is probably saying that we can eat but we won't give it to our kids, but our parents would say even more strongly, and their parents even more strongly, because somewhere what is happening is that the immune system of all the younger generation is deteriorating. हमारा immune system अगर from a stage of 1 to 10 was 9, today our children have 7, their children might have 5. So it's the immune system which is deteriorating, and that's why we are saying okay, we won't give this to our children. Actually speaking, every food must be served safe, and like I said, as a chef we are trained to serve safe food. So whoever is got a food organization, a restaurant, a dhaba, a food kiosk, must make sure that you are doing human service, and that human service must be done safely. ভেজ রেঞ্জ নন ভেজ রেঞ্জের পর এবার নতুন এই স্ন্যাক্স ইন্ডিয়ার স্ন্যাক্সের যে ট্রেন্ড তাকে বদলাতে পারবে
কারণ এটি প্রিজারভেটিভ ফ্রি দাবি করছেন গোদরেজ ইয়ামিজের কর্মকর্তারা। ক্যামেরায় শ্যামল দত্তের সঙ্গে আমি সুচন্দ্রিমা, কলকাতা টিভি।